Karalu kuzampo, Taregi lerim galu, Karalu chambale so ye, Ngache, Lirim di go masui hema, Ngache melamchi, Shuge. Chapgen cho shumasika, Toto sonso chawacharagi ngachalu, Katoto kitoku shakti chimidikole, Chawacharu ngacha, Karin cheshi shuni sawa, Kachimasawachin, Ngacha tare, Lirim di nalu kachara biru ngacha judre biru ngacha lu thenilere birura ngacha totonalu su shemi chawa charagi su di yeni kole ngachalu to so ngachalu yeni kole ngachalu yendigi biru ngachagi namju chile yendigi chinele ten tamasupigi ngachalu ribde kheko na shishuni joshmasika ingi melam chungu insnami chawa ishu sanazuni amen. Nimchichi bituji gate chibomo ngalu chamba zebi iwi le chabze iliga soyi depada tara shinobi iliga soyi Topji iliga soyi depada tara chirufi iliga soyi depada tara chirufi rewazodi Yishuchi da jidi tharbaloi vatopji iliga soyi depada tara chirufi iliga soyi depada tara chirufi Dunimi bimise ishuchi nai Ngalulam da dempa chiligi dishinmi iliga soyi depada tara chirufi iliga soyi depada tara chirufi. आज हम देखेंगे भविष्यवाणी काम के आधार नियुक्त। पहला पत्रस्थल हम लोग देखेंगे दूसरा पत्रास 1:19। यहाँ लिखा है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। यहाँ पर हमें जो है एक विशेष चीज़ को बता रहा है पतरस, जो कलीसियाओं को जो है ये एक समाचार दिया है। समाचार यही है उनके लिए कि जो वचन जो है इस वचन में उनके हृदय में जो है वो समझे, समझकर, ध्यान देकर और उनके ये जब पढ़ते रहेंगे तो उनके हृदय में जो भी बुराई है वो हट जाएंगे और हट करके वो प्रकाश उसके जीवन में जो है
प्रकाशित होगा, यानी कि बुराई से अच्छा में जो है वो ये क्या हो जाएंगे, वो चलेंगे। और जो कि उनके हृदय में जो है परमेश्वर तब तक इस वचन के जरिए उनको उत्साहित देते रहेगा जब तक वो सच्चाई को ना जान सके, कि न उस सच्चाई पर वो जब तक ना चले। तो चलेंगे तब तक जो है उनको जो है उसको इस पर अगुवाई करता है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण हम सुनेंगे। सुरेश बर्मन, আমার জন্ম রাজবংশী পরিবারে ব্যাকগ্রাউন্ডে। আমি 1988 সাল 15ই আগস্ট সন্ধ্যা 6টা 45 মিনিটে প্রভুকে গ্রহণ করি। আমার ব্রেন টিউমার হয়েছিল। যে ভাই দুইজন আমার কাছে আসছিল, সে দুইজন ভাইয়ের নাম হচ্ছে স্বদেশ কালিন্দিয়া, জেমস কালিন্দিয়া। ওদের মধ্য দিয়ে আমি পাই এবং সমস্ত ডাক্তার আমাকে ফেরত দিয়েছিল, বলেছিল সে মরবে বলে, আমি চলে যাব পৃথিবী ছেড়ে। কিন্তু ওরা এসে একদিন স্কুলে যখন সুসমাচার টেক্সট প্রচার করছিল তখন আমি ওদেরকে একটা গালিগালাজ দিই। আমি স্কুল ক্লাস ক্যাপ্টেন ছিলাম। তো সেই সময় আমি ভাবছি যে না, আমি চলে যাব, ওদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। 15ই আগস্টের দিন কোনো এক বন্ধুর মাধ্যম দিয়ে আমি তাদেরকে ডাকি। আমি অসুস্থতার কারণে ঘর থেকে বেরোতে পারি না, কিন্তু ওদের বন্ধুর মাধ্যমে ডাকার ফলে ওরা বাড়িতে আসেন। এসে আমি ওদের কাছে ক্ষমা চাই, ভাই আমি চলে যাব। সেই দিনের কৃতকার্যের জন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি, আপনারা আমাকে ক্ষমা করেন। তা ওরা বললো, ভাই আমরা মানুষ, আমরা কি করব, আমরা পাপী, আমরা গুনাহগার মানুষ, আমরা আপনাকে কি করে ক্ষমা করব? একজনই আছে, সে ক্ষমা করতে পারে এবং তোমাকে ভালো করতে পারে, তাকে ডাকো। তো অ্যাকচুয়ালি তখন আমি ছিলাম হিন্দু ব্যাকগ্রাউন্ডে, একদম কিছু সংসার এগুলো আমি কিছু জানতাম না। তখন বললাম যে না, কাউকে তো দেখছি না, ডাকলে গলা ফাটিয়ে ডাকলে আর কত দূর, আপনি ডাকেন। তখন দুই ভাই আমার দুই পাশে ঘাড়ে হাত রেখে প্রার্থনা করলো। তাদের প্রার্থনার চোখে জল দেখে আমিও চোখে জল রাখতে পারিনি, আমিও কেঁদে ফেলি। সেই দিন প্রথম আমি অনুতাপের মাধ্যমে প্রভুকে আসি। এরপরে কুচবিহার চার্চে যাই। কুচবিহার চার্চে চুপি চুপি যাওয়ার পর ওখান থেকে এরপর ঘটনাটা যখন আমাদের বিজেপি RSSরা, মাথামা 7 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আমি ছিলাম, তো সে সময় RSS যখন জানতে পারে তখন আমাকে এক সুপারি গাছে বেদম মারপিট করে। এক অলৌকিক, বলতে অনেক সময় লাগবে কিন্তু সেটা বলছি না, অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে আমি ওখান থেকে বাঁচি। তারপর আমি ওই পাস্টার বাবুর কাছে যাই, পাস্টার বাবুকে বললাম যে ওরা আমাকে এরকম করছে, আমি কেস করে দেবো। বলে না, তুমি তাদের জন্য ঘটনা ঠেকো, প্রার্থনা করো। হ্যাঁ, তো প্রার্থনা করলাম, করার পর আমাকে ওখান থেকে পাঠিয়ে দিলেন ক্যালকাটা বাইবেল কলেজে ট্রেনিংয়ে। ওখানে আমি 3 বছর BTS কোর্স কমপ্লিট করার পর সমস্যা আউটরিচ করি। এদিকে ঘুরে আসার পর আমাকে বাড়িতে শ্রাদ্ধ সব করে দেওয়া শেষ। তো এখন বর্তমান আমার কোনো বাড়ির পরিবারের বা কোনো আত্মীয় স্বজনের কাছে কোনো আমাদের রিলেটিভের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক বা যোগাযোগ নাই। এরকম অবস্থায় আমি প্রভুতে একজন সেবক, এবং আমি প্রভু আমাকে সহসঙ্গিনী সহধর্মীয় দিয়েছে। আমার 2টা বাচ্চাও আছে, একজন ছেলে একজন মেয়ে। ছেলের বয়স 5 বছর, মেয়ের বয়স 8 বছর। আমি এখন প্রভুর সেবা কাজে লিপ্ত আছি। আশা করি প্রভু আপনাদেরও আশীর্বাদ করবেন, প্রভু আপনাদের সঙ্গে চিরন্তন থাকবেন। আপনি যে যেখান থেকে শুনবেন আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন, কারণ মার্ক লিখিত 11 অধ্যায় 23 এবং 24 পদ অনুসারে বলছেন যে পর্বতকে বলো উপড়িয়ে যাও, সমুদ্রে গিয়া পড়ো, মনে মনে সন্দেহ না করে বিশ্বাস করে তবে যাহা বলিয়েছে, বিশ্বাস করে তবে তাহা পাইয়েছে, তবে তাহার জন্য তাহাই করা হবে। তো বিশ্বাসের বলে যদি পাহাড় সরে যায়, আমাদের জীবনে সামান্য উতরাই চড়াই কোনো ব্যাপার নয়, সমস্ত কিছু নিরাময় হবে। सुरेश बर्मन तो हिंदू बैकग्राउंड से रहता है और कुचबिहार का रहने वाला, वेस्ट बंगाल से, और उसका ब्रेन ट्यूमर हुआ था। और ब्रेन ट्यूमर को चेक करने के लिए उसने हर जगह गया और बहुत सारे डॉक्टरों से उसने उपचार किया, तो कोई डॉक्टर जो है उसको उपचार नहीं कर सके। और डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज नहीं हो सकता है, और इस तरह से वो जो है निराश में होकर के घर में रहता है।
और वो स्कूल में उसमें पढ़ता है। ये 1988 की बात है। और उसके बाद जब एक दिन 15 अगस्त का दिन था 1988 का बात, और वो क्लास में जब रहता है और उस समय ये जो है कलकत्ता से जो 2 लोग आते हैं प्रचार करते हुए, और उसमें से जेम्स कलंगिया और स्वर्गीय कलंगिया, ये 2 जब वहाँ प्रचार करते हुए वहाँ पहुँचते हैं और उनको जो है वहाँ पर कुछ टेक्स्ट और प्रचार करते हैं। तो उसको जो है ये सुरेश क्लास का कैप्टन रहता है, तो वो जो है उनको गाली देता है और इस तरह से जो है वो दोनों जो प्रचार के लिए आते वो चले जाते हैं। उसके बाद ये सुरेश अपना घर जब चला जाता है, घर जाने के बाद जो है वो सोच विचार करता है कि मैंने दोनों को जो है प्रचार के लिए आए थे उनको मैंने गाली करके अच्छा नहीं किया, और वो पछताता है। और उसके बाद जो है आज 15 अगस्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो अपने दोस्तों को भेजता है कि वो दोनों को बुलाओ बोल करके। और उसके बाद वो दोनों प्रचारक को जो है बुलाने के लिए भेजा और उसके दोस्त लोग उसको बुलाए। और उसके बाद वो दोनों जो है वहाँ पहुँच जाने के बाद वो उसको ये जेम्स कलंगिया दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। सुरेश बर्मन जो है माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो बोल करके। तो ये जेम्स कलंगिया ये दोनों बोलते हैं कि हम दोनों तो हम नहीं कर सकते हैं, परंतु माफ़ स्वर्ग में जो है परमेश्वर है वही कर सकता है। और उसके बाद जो है ये दोनों उसके लिए उसका ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानने के बाद वो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद वो एहसास करता है कि उसमें जो है परमेश्वर जो है उसको चंगाई का एहसास। उसके बाद वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद वो कुछ दिन के बाद वो कुछ बार चर्च में वो चोरी छिपे चल जाया करता था। इतने में एक दिन जो है वो आरएसएस बीजेपी का आरएसएस दल वाले लोग इनको पकड़ लेता है और इनको बहुत पीटते हैं, मार पीटते हैं, वो भी सुपारी का पेड़ में बंद करके। और उसके बाद जो है ये आ जाता है अपने ये पास्टर लोगों के पास जो उनको बताया था सुसमाचार। तब अब क्या किया जाए बोल करके कि केस करूँ ना क्या। तो उन्होंने बताया कि नहीं, केस नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर उनका जो है उनको सज़ा देगा। और उसके बाद यहाँ से उसको जो है घर से निकल दिया गया। और उसके बाद ये सुरेश जो है सुरेश को ये पास्टर दोनों भेज दिया कलकत्ता बाइबल ट्रेनिंग के लिए। और वहाँ पर ट्रेनिंग करके वो वर्तमान अभी बाइबल का एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुँचाने का काम करता है, जो कि आज ये कुछ 2021 ये अगस्त में फलाकाटा स्कूल में भी वो लेकर आए और वहाँ बाइबल जो है बहुत सारे बाइबल जो है स्कूल में देकर चले गए। और इस तरह से जो है उसका परमेश्वर जो है उसको इस काम में उसको अगुवाई करने लगा और इसमें प्रयोग कर रहा है। तो अभी हम लोग इसका जो यूहन्ना की किताब में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें इस बात को बताता है 13 उसका 19 में, जहाँ पर बताता है कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो। यानी कि यहाँ कहता है कि जब महसूस होने लगा तो उसने जो है विश्वास किया, लड़का ने विश्वास कर लिया कि नहीं सच में जो है परमेश्वर का शक्ति है। और उसके बाद वो विश्वास करके वो सच्चाई में यानी कि वो प्रभु को ग्रहण उसने कर लेता है।
यहाँ पर हम देखेंगे कि नबूकदनेस्सर जो है किस तरह से जो है उसको इस भविष्यवाणी में उनको दिखाया गया है। हम पहला देखेंगे, दानियेल का किताब खोलेंगे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर जो भविष्यवाणी है और ये होगा जो कि किस तरह से होने वाला है। यहाँ पर दो में जब देखेंगे 2 अध्याय और उसके हम 28 पद को जब देखेंगे तो यहाँ पर हमें बताता है कि नबूकदनेस्सर ने स्वप्न उसने देखा और अंत का समय में क्या क्या होने वाला है, और इस बात को दानियेल ने उसको बताया। और उसके बाद हम पाते हैं कि नबूकदनेस्सर जो है स्वप्न वो देखता है, जो कि दानियेल 2 का 31 से लेकर के 35 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पाते हैं कि वहाँ किस तरह से राजा ने स्वप्न देखा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ा मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पैर कुछ उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूपकाल के जैसे कि धूपकाल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा, और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजा जो स्वप्न देखा वो क्या क्या का रहता है। सोया हुआ था और उसने स्वप्न उसने देखा है। यहाँ पर हम देखेंगे पहला जो है सोना का है, उसके बाद ये चांदी का, पीतल का, लोहा, और यहाँ पर लोहा और मिट्टी जो है इसमें मिला हुआ है, और जो परमेश्वर का पत्थर जो उसने देखा आकर के इसमें लगा और ये चूर हो गया। राजा यहाँ पर सोया हुआ है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी किस तरह से जो है उस स्वप्न का अर्थ हम 2 अध्याय और उसकी 36 पद में हम पाते हैं, जहाँ पर दानियेल उसको अर्थ बता देता है। उसके बाद दानियेल 2 का 38 में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर सबका अधिकार तुमको दे दिया गया है बोल के दानियेल राजा को बोलता है, और सोना का सिर तुम हो बोल के दानियेल राजा को बोलता है, और दानियेल को बोलता है जो कि ये अधिकार जो सोना है जिसको हम बेबीलोन कहेंगे, बेबीलोन 606 से लेकर के 538 ईसु पूर्व में ये इसका गठन हुआ था।
जो कि ये सिर है। उसके बाद हम देखेंगे कि दानियल 2 अध्याय और उसकी 39 में, जहाँ पर जो है 2 का 39 में, जहाँ पर बताया गया है कि तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पित्तल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। तो यहाँ पर बताया है कि जो राजा के नबूकदनेस्सर के बाद जो है जो राज्य आने वाला वो थोड़ा छोटा होगा, उसके बाद उससे और बाद में जो होगा वो उससे और मतलब छोटा होगा, लेकिन उसमें फिर भी सारे पृथ्वी उसकी मुट्ठी में आएंगे बोल के यहाँ पर बताता है। जो कि दूसरे नंबर में है ये जो है जिसको हम यहाँ पर पाते हैं दूसरे नंबर में, जो कि राजा नबूकदनेस्सर ने देखा था। और ये चांदी का जो कि मेडो पेर्शिया 538 से लेकर के 331 ईसा पूर्व में यह राज्य हुआ। और उसके बाद हम पाते हैं कि उसका नीचे में यहाँ पित्तल जो है, पित्तल जो कि ग्रीस राज्य को दिखाता है। 331 से लेकर के 168 ईसा पूर्व हम इस चीज़ को पाते हैं, जो कि ये इसके बाद जो है इसको हम पाते हैं। उसको पाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पाएंगे कि जो दानियल 2 अध्याय और उसके 40 में जब देखेंगे तो वहाँ पर हम पाएंगे कि क्या पाते हैं, लोहा। 40 में यहाँ लिखा है किस तरह से, चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा, लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पीस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पीस जाएगा। तो यहाँ पर बता रहा है कि लोहा जिस तरह से मजबूत है उसी तरीके से जो है हर चीज़ को जो है चूर चूर कर डालती है, उस तरीके से हर राज्य को जो वो अपना काबू में कर लेगा और वो अपना राज्य गठन करेगा। इस चीज़ को यहाँ पर हम क्या करते हैं, पाते हैं। और ये जो है 168 से लेकर के ईसा पूर्व 476 यीशु मसीह मर गया, जी उठा और स्वर्ग चला गया, उसके बाद का हम पाते हैं। और उसके बाद हम जब दानियल 2 अध्याय 41 और 43 को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम मिट्टी और लोहे का बारे में हम पाएंगे। वहाँ पर इस तरह से लिखा है 41 में जब पढ़ते हैं कि तूने जो मूर्ति के पाँवों और उनकी उंगलियों को देखा, वो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़कपन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। तो यहाँ पर जो है जिस तरह से मिट्टी और लोहा जो मिलावट था, और जिस तरह से जो है लोहा में जो है कुछ उसमें कुछ कड़ापन रहेगा और इस राज्य में, और मिलावट उसमें जो है देखा गया उस तरीके से राज्य तो रहेंगे अलग अलग, और ये मिलावट मिलजुल के नहीं रहेंगे, बल्कि वो अलग अलग वो रहेंगे, ये बंटवारा हो जाएंगे बोल के हम यहाँ पर पाते हैं। और जब इसका जो कि 43 में जब देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि
यहाँ पर लिखा है कि तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, उसका अर्थ यह है कि उस राज्य में लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। तो यहाँ क्या कहता है, वो एक बने नहीं रहेंगे, ये अलग अलग देश जो है हो जाएगा, यानी कि ये बंटवारा हो जाएगा। इस बात को यहाँ पर हम पाते हैं। और इसलिए हमें जो है यहाँ पर जो आज वर्तमान का समय में जितना भी जो देश है अलग अलग, ये बंटवारा वहीं से हुआ है। जो भविष्य ने किया गया वो पूरा होते हुए आ रहा है और हो गया है। तो दानियेल 2 उसका 44 में जब देखेंगे तो वहाँ पर हमें बताता है कि जो स्वर्ग से जो है परमेश्वर ये इस पृथ्वी में आएंगे अपने दूतों के जरिए, और राज्य वो क्या करेगा, गठन करेगा, और वो हर एक देश के राज्यों को जो है चूर चूर कर डालेगा, और ईश्वर का राज्य जो है स्थापन करेगा। यानी कि परमेश्वर का राज्य जो है इस पृथ्वी में वो स्थिर रहेगा, वो शुरुआत होगा। इस बात को यहाँ पर पाते हैं। मत्ती 25 उसकी 31 में जब देखेंगे तो वहाँ पर हमें बताता है कि दूसरे आगमन में जो यीशु मसीह आएंगे तो उस समय जो सिंहासन पर यीशु मसीह विराजमान रहेगा। लूका 23 उसकी 42 में जब देखेंगे तो वहाँ पर बताता है कि जिस तरह से जो है डाकू दो यीशु मसीह के उस सूली पर जब चढ़ा हुआ था तो डाकू ने बोलने लगा कि मेरी सुधि लेना, और उसने क्योंकि वो मरने वाला था और इसलिए वो जो है अपने पाप को जो है मानते हुए यीशु मसीह को जो है बोलता है, क्योंकि एक तरफ में चोर एक तरफ में डाकू। तो हम पाते हैं कि वहाँ यीशु मसीह बीच में था, तो उस समय जो है उसको इस तरह से बोलने लगता है कि मुझे याद करना बोल करके, कब, जब स्वर्ग जाओगे तो मुझे याद करना। और यीशु मसीह ने यही बोला कि उसको याद करूँगा बोल करके। तो आज जो है आप सबके लिए भी यही है कि अगर आप अपने जीवन में कोई भूल किए हैं, गलती किए हैं, तो आज आप इस बात को एहसास कीजिए कि मेरी सुधि लेना बोल के स्वर्ग परमेश्वर से बोलना है, ताकि आपके हर एक बुरे को जो है क्षमा की जा सकती है। इसी बात को हमें यहाँ देखता है। लेकिन इस बात को याद रखना जरूरी है कि आप अगर उसके बुराई, अपने जीवन के बुराई को अगर नहीं मानते हैं, उसको अगर ध्यान नहीं देंगे और हे प्रभु तो बोलते रहेंगे, हाँ, तो क्या आपकी प्रार्थना और आपकी स्वर्ग जाने के लिए क्या मौका मिलेगा? मत्ती 7 अध्याय 21 पद जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहता है कि हे प्रभु कहते हैं और मेरे इच्छा पर नहीं चलते हैं, यानी कि परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं, तो वो जो है स्वर्ग राज्य के लिए भागीदार नहीं हो सकते हैं। लेकिन वही जा सकते हैं जो कोई पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, या उनके आज्ञा को पालन करते हैं और इच्छा पर चलते हैं। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप सबके लिए कि आप इसको इच्छा पर चलने के लिए कोशिश करें और आप भी स्वर्ग राज्य के लिए भागीदार हो जाएं। Just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I prove him more and more. Jesus, Jesus, praise
trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove it more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, gracious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, wilt be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I trust Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से तूने यह मौका दिया कि आज का प्रोग्राम में जो भी हम सब ने सीखा, समझा, सुना, इसमें तेरी अगुवाई रहा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस तरह से जो है इस वचनों को औरों को भी हम बता सकें और उसको सिखा सकें। प्रार्थना करते हैं जितने भी गरीब दुखी और बीमार तकलीफ में हैं, मुश्किलें में हैं, उनके संग रहना, उनकी सुधि लेना, और इस तरह से तेरे महिमा करने वाले बन सके। हम प्रार्थना के अपराधों को क्षमा कर, हम सबको आपका आगे कर करें। धन्यवाद मांगते विनती यीशु मसीह के नाम से स्वयं सुनो, ग्रहण कर, आमीन।